Welcome back, student. Welcome back to my channel. This is me, Nikita Gupta, and today we are going to discuss about the class 12th biology. In this particular video, we will discuss about the different questions which are going to come in term 1 syllabus. मैंने कोशिश करी है कि मैं important questions ला करके दूँ जो कि आपके term 1 में आ सकते हैं, and that whole syllabus is there. So the question number 1 is the solid mass of 8 to 16 cell formed from zygote after successive mitotic division is called. Option number A blastula, option number B gastrula, option number C morula, option number D none of these. So student, the option number C is the correct answer. 8 to 16 cells are known as morula. So the correct answer is morula. Now coming on question number 2. The implantation takes place after dash of fertilization. Yani how many days it take after fertilization. So the option number A 5 days, option number B 6 days, option number 7 C 7 days, option number D 8 days. Correct answer is option number C 7 days. Question number 3. Structure connecting the fetus to placenta is known as option number A umbilical cord, option number B amnion, option number C yolk sac, option number D chorion. The answer A is very correct, that is umbilical cord. Question number 4. Which of the following hormone is not a secretory product of human placenta? बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है. ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्ट्रॉन. So the option is B. Prolactin is not going to be secreted by placenta. Question number 5. Urine test during pregnancy determines the presence of option number A. Human chronic gonadotropin hormone, option number B. Estrogen, option number C. Progesterone, option number D. Luteinizing hormone. So the urine test is going to determine the presence of human chronic gonadotropin hormone. So the option number A is correct. Question number 6. In the event of pregnancy, the corpus luteum persists under the influence of option number A LH, option number B FSH, option number C chronic gonadotropin, option number D progesterone. So the correct answer is during the pregnancy, corpus luteum persists under the influence of chronic gonadotropin, that is option number C. Question number 7. During the development of embryo, which of the following occur first? During the development of embryo, यानी embryo बनने के दौरान कौन सी वो स्टेज है जो कि सबसे पहले देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल. जाहिर सी बात है इन सभी में सेल सबसे पहले बनता है. सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल. क्वेश्चन नंबर 8. द स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म. द स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म आर एक्टोडर्म. वी हैव 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. यहाँ गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जो कि एक्टोडर्म से बनते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 3 किडनी एंड ऑप्शन नंबर 4 नोटोकॉर्ड. नाउ द ऑप्शंस आर ए ऑप्शन इज सेइंग दैट फर्स्ट एंड थर्ड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड किडनी बनता है. ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग सेकेंड एंड थर्ड कॉर्निया एंड किडनी का फॉर्मेशन होता है. ऑप्शन नंबर सी इज सेइंग पिट्यूटरी ग्लैंड
एंड कॉर्निया का फॉर्मेशन यानी फर्स्ट एंड सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी इज सेइंग कॉर्निया एंड नोटोकॉट का फॉर्मेशन है. सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉर्निया. याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉर्निया का जो फॉर्मेशन है वो एक्टोडर्म से होता है, क्योंकि वो ग्लैंड है एंड दैट इज द एक्सटर्नल ऑर्गन कॉर्निया. गैस्ट्रुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच, किसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा? क्लीवेज के दौरान, ए ऑप्शन. बी ऑप्शन इज ब्लास्टोसील फॉर्मेशन में. ऑप्शन नंबर सी जर्माइनल लेयर्स फॉर्मेशन में. या ऑप्शन नंबर डी इन केस ऑफ विलाई फॉर्मेशन. किसमें गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होगा? जब जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तभी गैस्ट्रोला फॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. In the development of human body, the ectoderm is responsible for the formation of. In the development of human body, so the question number 10 is, in the development of human body, the ectoderm is responsible for the formation of. अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके को सॉल्व किया है. लेंस ऑफ द आईज, नर्वस सिस्टम, स्वेट ग्लैंड एंड ऑल ऑफ दीज. लेंस ऑफ द आई का फॉर्मेशन एक्टोडर्म के थ्रू ही हो रहा, तभी कॉर्निया भी आंसर था. नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म प्रोड्यूस करती है, स्वेट ग्लैंड्स भी. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. सो दैट मीन्स द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन the process when DNA is mRNA is going to synthesize protein. So during the translation, activated amino acid get linked with the tRNA, and this process is commonly known as charging of tRNA, discharging of tRNA, amino acylation of tRNA, and both A and C. During the translation, activated amino acids gets linked to tRNA. This process is commonly known as. So the option number C is the correct answer, that is amino acylation of tRNA. Coming on the next question, question number 12. To prove that the DNA is the genetic material, which radioactive isotope were used by Hershey and Chase in 1952 experiment? Very easy question. To prove that the DNA is the genetic material, which radioactive isotope were used by the Hershey and Chase 1952 in experiment? जो भी बच्चे यहाँ तक मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि वो कौन से दो मटेरियल जो उन्होंने यूज़ किया था. वेरी करेक्ट, द आंसर इज नाइट्रोजन आइसोटोप दे हैव टेकन. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट with the 14 and 15 nitrogen. RNA is the genetic material in, very easy question, prokaryotes, eukaryotes. Option number C, tobacco mosaic virus and Escherichia coli. So the answer is tobacco mosaic virus, which is a TMV virus. Question number 14, which one among the following was the first genetic material? Very easy question. A is DNA, B is RNA, C is protein, D is nuclein. DNA is better genetic material, but RNA is the first genetic material. So the option number B is correct answer. B is a first genetic material. Question number 15. Which of the following life processes is evolved around the RNA? वो कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि RNA के चारों तरफ प्रेजेंट है, जो कि उसी पर डिपेंड कर रहा है? So the option number A is metabolism. Option number B translation. Option number C splicing. Option number D all of these. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग यानी सारे के सारे प्रोसेस इसी के आसपास में है, पर ट्रांसलेशन इज़ द बेसिक प्रोसेस जो कि आरएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द बेसिक प्रोसेस जहां हमें आरएनए की नीड समझ में आती है. स्प्लाइसिंग इज़ द स्टेप टू कन्वर्ट HNRNA into mRNA, एंड मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस जहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों तरह की प्रोसेस होती है. सो वी कैन नॉट टेक मेटाबॉलिज्म एज एग्जाम्पल. सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज अ ट्रांसलेशन. क्वेश्चन नंबर 16. RNA इज रिएक्टिव
एंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए को आपको बताना है कि वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं इक्वली रिएक्टिव और इक्वली स्टेबल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। ऑप्शन नंबर सी इज सेइंग more reactive but less stable, and option number D more reactive but equally stable. So we know very well कि RNA can replicate and can translate very fastly. So reactive तो वो जाहिर से बात है DNA से बहुत ज़्यादा है, लेकिन stability DNA की ज़्यादा है. So the C option is correct, which is more reactive and less stable. Question number 17. Which of the following phenomena was experimentally proved by the Michelson and Stahel? These are the scientists जिन्होंने कुछ experiments किए थे. So the first is transformation, the second is transduction, the third is semi-conservative DNA replication method, and the D is central dogma. तो we know very well कि ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने नहीं किया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था. सेंट्रल डॉगमा भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू. सो द सी ऑप्शन विच इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर. Question number 18. First experimental proof for the semi-conservative DNA replication was shown by. किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर में सबसे पहले इसको दिखाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ऑप्शन नंबर बी एस्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोस्पोरा क्रासा, एंड ऑप्शन नंबर डी रैटस रैटस. तो वी नो वेरी वेल कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, एस्चेरिशिया कोलाई या न्यूरोस्पोरा को तो यूज़ भी किया था. रैटस रैटस फिलहाल उस समय यूज़ नहीं हो रहे थे, या उस एक्सपेरिमेंट में तो फिलहाल नहीं यूज़ किया गया. सो द आंसर इज बी विच इज़ एस्चेरिशिया कोलाई. क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द एंजाइम विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन. सही एंजाइम को आपको पता करना है जो कि उसके फंक्शंस के साथ ऐड कर रही है. डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड में हेल्प करेगी. हेलिकेज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हेल्प करेगी. लाइगेज जॉइंट टुगेदर द शॉर्ट डीएनए, इसीलिए इसको ग्लू भी कहा जाता है. एंड ऑल ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज ऑल ऑफ दीज. Question number 20. Other than DNA polymerase, which are the enzyme involved in DNA synthesis? वो कौन DNA polymerase के अलावा वो कौन से enzymes है जो कि DNA synthesis में help करते हैं? So the answer is topoisomerase. अगर आप लोगों ने वीडियोज़ मेरे देखे हैं तो आपको ये पता चलेगा. topoisomerase will help in the process of replication. Helicase is going to help in unwinding. RNA primase प्राइमर को अटैच करने में हेल्प करेगा. So the D option is correct, which is all of these. Question number 21. DNA replication takes place dash phase of the cell. DNA replication होता कब है? 4 phases आपको दी गई हैं. A G1, B S, C G2 and D is M. So the correct answer is synthesis phase, क्योंकि replication में क्या है, कॉपी हो रहा है. तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड है बिफोर द सेल डिवीजन प्रोसेस. सो इट इज़ द सिंथेसिस फेज. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज़ एस फेज या सिंथेसिस फेज. क्वेश्चन नंबर 22. The process of copying genetic information from one strand of the DNA to RNA is termed as. एक DNA के स्ट्रैंड से कॉपी करने का जो मेथड है RNA के फॉर्म में, दैट कुड बी नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन. दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक. The enzyme DNA dependent RNA polymerase catalyzes the polymerization reaction in which direction? ऑप्शन है only 5' to 3', only 3' to 5', बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट विच इज़ 5' to 3' इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज ATT CGATG, then the sequence of bases in mRNA. कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया गया है. कोडिंग स्ट्रैंड से आप कभी भी डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते, तो पहले आपको इसका एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा. टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल लोगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए. सो उस हिसाब से जो आपका पहला सेगमेंट होगा वो होगा TAAGCTAC. दिस विल बी द सीक्वेंसेस. सो अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होगा mRNA के फॉर्म में. सो TAA विल बी फॉर्मिंग AUU CGAUG. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
डी ऑप्शन. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग से डायरेक्ट कभी नहीं बनेगा. कोडिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट बनाना होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री के रूल से बनेगा, एंड देन यू हैव टू फॉर्म द mRNA. क्वेश्चन नंबर 25 अगेन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है. इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस DNA इज CGTTAGGCAA, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट, जो उसका ट्रांसक्रिप्शन बनेगा उसमें, तो ट्रांसक्रिप्शन कुड बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ mRNA. तो अगर mRNA का फॉर्मेशन करना है तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा कि ये जो आपका सीक्वेंस जैसे आप कोडिंग मानेंगे, देन आपको एक ट्रांसलेट बनाना है, और ट्रांसलेट बनाने के बाद आपको इसका mRNA बनाना है. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा. यहाँ दिख तो रहा है लेकिन तब भी आप मुझे बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा. मैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए छोड़ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट्स विथ TATA बॉक्स. ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट्स विथ पैलेंड्रोमस रीजन, यानी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस से स्टार्ट होता है, एंड एंड विद द रो फैक्टर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या चीज़ होते हैं? पैलेंड्रोमिक वो सीक्वेंसेस है जिनको जब आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो तो इनके सारे सीक्वेंसेस एक जैसे आते हैं. जैसे आपने GAATTC पढ़ा, सेम उसी तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी नीचे के साइड पे, जैसा आप देख सकते हैं. एंड ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट्स विथ प्रमोटर रीजन एंड एंड्स इन टर्मिनेटर रीजन, एंड डी स्टार्ट्स विथ CAT रीजन. CAAT जैसा कोई भी रीज़न नहीं होता है. TATA बॉक्स ज़रूर इनिशिएशन कोडॉन हो सकता है, ये सब पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, दैट इज स्टार्ट्स विथ प्रमोटर रीजन एंड एंड्स इन टर्मिनेटर रीजन. क्वेश्चन नंबर 27, during the transcription the site of DNA molecule at which RNA polymerase binds is called. ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन जो साइट है DNA मॉलिक्यूल का, वो RNA पॉलीमरेज किस साइट पे ला करके बाइंड करता है. सीधी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, उसके 3 ही प्रोसेस है, प्रमोशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. तो जहाँ से इनिशिएट करना है वही लगेगा, तो प्रमोटर के साइड पे आकर के लगेगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA विच इज अ mRNA यूजुअली अकर्स इन बैक्टीरिया. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यूकैरियोट्स में पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी ए बी. बहुत ही इजी क्वेश्चन बना दिया गया आपके लिए. अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ करो, यूकैरियोट्स में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक है. तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29, इन द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स heterogeneous nuclear RNA which is a hnRNA is transcribed by किस एंजाइम से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. सो द आंसर इज, ये याद होना चाहिए, दैट बी RNA पॉलीमरेज 2, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉलीमरेज ने अपने फंक्शंस को डिवाइड करके रखा हुआ है. पॉलीमरेज 1, 2 और RNA पॉलीमरेज जो आपका देख रहे हो आप, एक गैप भी दिया है. तो ये सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरह के गैप्स वगैरह मेंटेन करते हैं ताकि आप करेक्ट ऑप्शन पे आंसर लगाओ. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGT is added to the 5' end of the hnRNA in the process of कैपिंग. वेरी इजी. जब आप hnRNA को mRNA में कन्वर्ट करते हो, चूंकि हम एंट्रॉन और एक्सॉन्स को स्प्लाइस करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो mRNA का साइज इतना छोटा हो जाता है कि माइट बी कि वो tRNA के लिए पॉसिबल नहीं होगा कैरी करने के लिए. तो उसको थोड़ी साइज देने के लिए हम उस पर एडिंग और हम उस पर कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एंड दैट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कैपिंग ऑफ methyl guanosine triphosphate. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज a capping process. Question number 31, in the eukaryotes the processing of primary transcript involves, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा. ऑप्शन नंबर ए रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी कैपिंग एट 5' एंड, ऑप्शन नंबर सी टेलिंग जो कि पॉली एडेनिलेशन या पॉली एडेनिलेटेड टेल की वजह से होती है एट 3' एंड, एंड ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी कैपिंग ऑफ 5' एंड. फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, यूकैरियोट्स में
जो प्रोसेस है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन का वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है. सो द आंसर इज बी, कैपिंग ऑफ 5' एंड. क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन ए HNRNA molecule untranslated region UTRs are present at which site? 5' and 3' and both A, B and 3' end. तो UTR का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये अनट्रांसलेटेड है, ये दोनों साइड्स पे पाए जा सकते हैं. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज बोथ A, B. UTRs are the untranslated region present on. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? दैट कुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन नंबर ए RRNA, ऑप्शन नंबर बी HNRNA, ऑप्शन नंबर सी mRNA and ऑप्शन नंबर डी HNRNA. So the correct answer is mRNA. They are present only and only in case of mRNA. mRNA is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स? राइबोसोम्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोस्ट ऑफ द सेल DNA molecules are stored there. Okay, not possible. ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम देयर. ये पॉसिबल है क्योंकि हमको पता है RNA इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री. तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रोटीन की चेन्स बनाने में होता है. सो बी थोड़ा सा लग रहा है. सी mRNAs आर प्रोड्यूस, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. डी DNA replication takes place there, बिल्कुल पॉसिबल है. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम देयर. क्वेश्चन नंबर 35. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ. रेगुलेशन ऑफ जीन, वैसे तो बहुत सारे वेरियस लेवल्स है जहाँ पे आप इसको कर सकते हो. पहले आप पढ़ लीजिए. ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ स्प्लाइसिंग, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसलेशन एंड ऑल ऑफ दीज. जैसा बुक में दिया है 4 ऑप्शंस वहाँ पे भी हैं, यहाँ इन चारों को एक साथ मिला के रख दिया गया है. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट कि ट्रांसक्रिप्शन हो, प्रोसेसिंग हो, स्प्लाइसिंग हो, ट्रांसलेशन, सारे ऑप्शंस में आप जीन एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन आपके सिलेबस में है. ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी आप पढ़ करके जरूर जाइएगा. RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू. ड्यूरिंग द ओपेरॉन RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर एंड द प्रमोटर. सो द करेक्ट आंसर इज प्रमोटर जीन. कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? प्रमोटर जीन का. लास्ट क्वेश्चन. द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन. कौन कौन से जीन आपके प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए लैक ए, so the option number A is lac A, lac Y, lac Z. Option number B lac A, lac Z, lac Y. Option number C lac Y, lac A, lac A. Option number D lac Z, lac Y, lac A. So the D option is correct, which is lac Z, lac Y and lac A. So इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. होप आपको ये 37 क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में. अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स मोर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया है सॉल्व करने के लिए आप उसका भी ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग.